Good morning students. We are back with chapter number 6 combustion and flame. It's the part 2. Part 1 में हमने क्या पढ़ा था कि combustion होता क्या है, ठीक है? तो combustion is nothing but burning, ठीक है? And burning will only take place in the presence of oxygen, ठीक है? This we have already discussed. Then we have also talked about ignition temperature. क्या होता है? The ignition temperature is the temperature or it is the lowest temperature at which any substance catch fire. That is its ignition temperature. ठीक है? Then we have also discussed about the conditions which are necessary for any combustion to take place. ठीक है? तो what all are the conditions? These three are the conditions, that is fuel, air and heat. अगर ये तीनों में से एक भी चीज मैं omit out कर देती हूँ, the combustion will not going to take place. Okay? Fuel is necessary because we need any combustible substance. Yes. Air for oxygen and heat is to raise the temperature beyond the ignition temperature. ठीक है? So this we have already discussed. Now today we will be talking about different types of combustion. Okay? So there are three basic types of combustion. The first one is rapid combustion, spontaneous combustion, and third one is explosion. If we first discuss about rapid combustion क्या होता है कि when you are providing some external source of heat, ठीक है? जब आप externally कोई heat provide कर रहे हो and then immediately the combustion is taking place, that is the rapid combustion. आप घर में LPG cylinder का knob on करते हो and then immediately when you spark the heat via the lighter, तो क्या होता है? वो immediately fire catch कर लेता है. You are providing the external source, आप lighter से spark produce करते हो और वो immediately light up हो जाती है. So that is the example of rapid combustion. Okay? So next हम बात करते हैं spontaneous combustion. Spontaneous combustion में क्या होता है? You do not require any external source of heat. ठीक है? हमने चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस किया था कि फास्फोरस जो होता है इट इज द नॉन मेटल और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द रूम टेम्परेचर, दैट इट कैन कैच फायर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स. सो फास्फोरस बर्निंग इज द एग्जांपल हियर. देखो यहाँ इज द combustion in which a substance burns spontaneously without any external source. Such type of combustion is spontaneous combustion. I hope you are clear with both the terms. The third one is explosion. आप पटाखे चलाते हो दिवाली पे, you burn the crackers, yes? तो क्या करते हो? You provide the external source of heat and then what happen immediately? Heat, light and along with heat and light a sound is produced. ठीक है? Such type of combustion is explosion. See, these three are the example. You are burning the burner. This is the example of rapid combustion. Phosphorus burning. Okay, spontaneous combustion. You are not providing any external source of heat. It automatically burns in the presence of air. Then explosion. That is burning of crackers. Okay, so this was about the combustion. Now अगर हम flame की बात करते हैं तो what exactly candle का flame देखा है आपने? What exactly the flame is? Flame क्या होता है? It's a zone of combustion of a combustible substances. ठीक है? Now अभी ये डायग्राम देखो. First we'll talk about the structure of flame. कभी आपने अच्छे से flame को observe किया है? The candle flame. This is the flame of candle. You will observe three different zones. You can see here the lower zone, या हम इसको बोलेंगे inner zone. What we will call it as inner zone. ठीक है? ये बीच वाला जो पार्ट है it is the middle zone and here it is the outer zone. Clear? जो inner zone होता है, the inner zone is the least hot. सबसे कम गर्म होता है. Then the middle zone is moderately hot और सबसे ज्यादा hottest part कौन सा होता है फ्लेम का? It is the outer zone which is the hottest part of the flame. Okay? अभी कभी आपने फ्लेम को
अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो आप कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देखते हो या सबसे ज्यादा लाइट देखते हो? तो आंसर इज दिस, द मिडिल जोन, क्योंकि वो बहुत सारी लाइट एमिट आउट करता है, इसीलिए हमने इस जोन को बोला है ल्यूमिनस जोन, ठीक है। एंड दिस आउटर जोन इज द डार्क जोन, इसलिए हमने इसको बोला है नॉन ल्यूमिनस जोन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अभी इसकी एक्टिविटी, ये कैसे हॉटेस्ट पार्ट है या ये क्या वेपर्स एमिट आउट करते हैं, इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसके अंदर क्या करना है, you have to bring one glass test tube near this part of the flame, the outer part of the flame, ठीक है। क्या किया आपने, ग्लास की ट्यूब लेके आए and here you have to put a matchstick, ठीक है। After some time what you will observe is this matchstick will start glowing. Why does it happen so is कि जैसे ही यहाँ पे कैंडल बर्न हुई, ये कैंडल में से वेपर्स एमिट आउट होते हैं और ये जो वेपर्स एमिट आउट हुए हैं इसकी वजह से क्या हुआ, ये मैचस्टिक बर्न हो गई, ठीक है। सो सी हियर, substances which vaporize during burning, they produce the flame. Now it is clear, जो सब्सटेंस वेपोराइज हो जाते हैं वही सब्सटेंसेस फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसके अंदर कोई सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होता है, दे नेवर प्रोड्यूस फ्लेम, दे विल जस्ट ग्लो। वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ ग्लो ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कैरोसिन लैम्प, वैक्स, ठीक है, मोल्टन वैक्स का ये फ्लेम देखो, यहाँ पे क्या फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज देयर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज वेपोराइजिंग, और उस वेपोराइजिंग की वजह से यू कैन ऑब्जर्व द फ्लेम। बट इफ आई टॉक अबाउट कोल एंड चारकोल, ये कभी फ्लेम प्रोवाइड नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सब्सटेंस जो वेपोराइज कर सके। तो अगर कोई सब्सटेंस वेपोराइज ही नहीं कर रहा है तो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं होगी, दैट इज दे विल जस्ट ग्लो। क्लियर? So this is the structure of flame. I have discussed all these three. Now, अभी हम बात करेंगे फ्यूल के बारे में। देखो फ्यूल क्या है, कोई भी फ्यूल को हम एफिशिएंट फ्यूल या एक बेटर फ्यूल कब कह सकते? When it cost effective, ठीक है, it should be cheap, no? It should be easily available. And third, one important thing is that when we are burning fuel, मतलब less amount जब हम burn कर रहे हैं फ्यूल का, we should get maximum amount of energy, मतलब कम फ्यूल जलाकर हमें ज्यादा एनर्जी मिले, ऐसे फ्यूल को we will call it as an efficient fuel, ठीक है। And the fourth most important characteristic of fuel जो हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं एनवायरमेंटल सिचुएशंस को देख के, इज दैट कि जब भी कोई फ्यूल बर्न करता है, इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू या कोई लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए, देन ओनली वी विल से दैट आवर फ्यूल इज अ एफिशिएंट फ्यूल या बेटर फ्यूल। ना किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को जज करने के लिए वी यूज अ पैरामीटर, और वी हैव अ पैरामीटर जिसको हम कहते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, मतलब व्हेन आई एम बर्निंग और व्हेन वी आर बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, ठीक है, 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर? जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना एफिशिएंट हमारा फ्यूल होगा। क्लियर? ना इस कैलोरीफिक की वैल्यू की यूनिट क्या है, इट इज किलो जूल पर केजी। कैसे? मतलब एनर्जी रिलीज पर ग्राम और पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो दिस इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। दैट इज द अमाउंट ऑफ
heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel. Okay? Now, ये सारी बातें हमने की थी थोड़ा पॉजिटिव साइड ऑफ फ्यूल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ फ्यूल, तो डीमेरिट्स में क्या है, हम यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं. तो जब हम ये पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, उनका कंप्लीट कंबशन होता है? नो. तो क्या होता है, हमें पता है फ्यूल और जो डीजल्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं. ठीक है, कैसे ऑब्टेन होते हैं? बाय फॉसिल्स. ठीक है, तो जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन के रेजिड्यूज लेफ्ट ओवर. जो आप व्हीकल चलाते हो तो फ्यूल जब बर्न होता है तो उसके कार्बन के रेजिड्यूज पीछे रह जाते हैं. तो वी विल नॉट से कि दिस इज द एफिशिएंट फ्यूल बिकॉज इट इज लेफ्ट ओवर द सम रेजिड्यू. और ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आइदर इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन की कमी है तो इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन है तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आप बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन क्या काम करता है बॉडी में, टू ट्रांसफर द ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी. पर अगर मैंने इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, कि ये मेरे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा और इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी बॉडी में लेके जाएगा. ठीक है, विच कुड बी वेरी डेंजरस फॉर मी. यस, ओके. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वी ऑल नो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. और ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है, इट इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. यस, एवरेज टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर का इंक्रीज कर रही है. एंड व्हाट इट इज लीडिंग, इट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर यहाँ तक ना? अलोंग विथ कार्बन क्या और एमिट आउट होता है, ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन्स भी एमिट आउट होते हैं, सल्फर भी एमिट आउट होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उनके साथ कंबाइन करते हैं और क्लाउड्स के साथ जब प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आते हैं तो व्हाट डज इट कॉज, इट कॉजेज द एसिड रेन. और एसिड रेन वी ऑल नो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कोरोडिंग द मॉन्यूमेंट्स. सुना है ना, कोरोजन ऑफ ताजमहल, वो येलोइश हो रहा है, मॉन्यूमेंट्स को खराब कर रहा है. एंड अलोंग विद मॉन्यूमेंट्स इट इज आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड सर्टेन सॉइल. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग फ्यूल. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंबशन. ठीक है, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ कंबशन, फ्लेम्स के बारे में डिस्कस किया, फ्यूल्स के बारे में डिस्कस किया. प्लीज गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स. टिल देन, थैंक यू.